भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर और मनोरम समय के लिए, जबकि हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। ये वो वचन है जिसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है और हम उसकी इच्छा को जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बाइबल स्टडी टुडे, एंड टुडे विल स्टडी फ्रॉम द फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 17 to verses 30. We know that this word is the light for our path, and because of this word, opening of this word, we know the will of God. And this word of God keeps us away from all pride, all self-righteousness, and all type of spirit of malice, so that we are made purified, made holy for His glory. मित्रों, ये वचन एक ऐसा वचन है जो हमारे हृदय से हर प्रकार के क्रूरता को, दुष्टता को और बदले की भावना को निकाल देता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्म सच्चाई से कर सकें। मित्रों, मैं जानता हूँ कि प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग, उनके जीवन में तब्दीली आती है, लेकिन कभी कभी हमारा भक्ति भाव, हमारी भक्ति, हमारी सेवकाई दिखावा होता है। हम सबके सामने तो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, दूसरों को नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय के अंतःकरण को जानता है, मन को जानता है, और वो जानता है कि हमारा घमंड जो है एक दिन हमारे नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए हमें, जब हम इन पत्रियों का अध्ययन करते हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ अपने आप को प्रभु के सामने रखने और अपने जीवन को अर्पण करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें इसके पहले कि हम बाइबल अध्ययन करें। आइए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे एज वी स्टार्ट द बाइबल स्टडी। स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, वी थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू लॉर्ड दैट यू reign in our lives. Thank you Lord for because of your grace and mercy today we live, and this is nothing because anything that we have in our own life, Lord. We are all fallible, all mortal people, and there are many mistakes, Lord, that we commit every day, many wrongdoing, Lord, that we involve every day. But Lord, you are so merciful, Lord. Forgive us and give us opportunity to look unto our own being and examine our lives, so that we are purified by your Spirit and your guidance and for your help and for your extension of your kingdom. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। प्रभु जी, हम इस योग्य बनाते कि हम आप में बढ़ते चले जाएं। आज के वचन पर आपके आशीष हो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we were looking at some of the verses in the past study, and we could see how our Lord made himself humble. We saw in our past studies that Jesus Christ, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Jesus Christ, the Son of God, the creator of entire universe, humbled himself. Whereas we, who are nothing, we make ourselves everything sometimes. We boast in our accumulated small knowledge, tiny knowledge. We boast a lot of things that I can do this and this and that, where others may not know what I can do, we can do. I think this type of spirit need to be overcome. Otherwise, our Christian walk will be not completed, will not be completing, and we will be taken away from this world without fulfilling our own task. And then when we will all stand before the judgment seat of God, we will be the recipient of the punishment. So we need to really talk ourselves, within ourselves, am I worthy of following Christ today? And this letter of St. Paul to the Philippians talks about exactly the same thing. Though Jesus
who was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. यह साफ लिखा है कि वरन जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य के समानता में हो गया। फिर हमने ये भी देखा था कि मनुष्य के समानता में होकर उसने अपने आप को दीन किया, दीन का ही humbled himself, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death even on the cross. When we follow Christ and then practice such a thing that are hypocritical is terrible in our lives. जब हम प्रभु के साथ चलने की बात करते हैं और हम दिखावा करते हैं अपने जीवन में, दोष लगाते हैं, गलत बातें करते हैं और तमाम उन बातों का एक उंगली लगाते इधर तो 3 उंगली हमारी तरफ अपने आप आ जाती। इसका मतलब क्या है कि जो तुम दोष लगा दूसरों पर लगाते हो ना, 3 गुना तो उससे ज़्यादा दोषी तुम हो। यह है वचन के आधार पर। ये जो आप उंगली हम लगाते हैं इसको देख लें, 1 उंगली उधर और 3 उंगली अपने तरफ, ये ईश्वर ने बना दिया। इसका मतलब है कि अगर हम दोष नहीं लगाए तो अच्छा है। कई बार हमें अपने ज्ञान का गर्व होता है कि मैं इतना जानता हूँ, इतना समझता हूँ, अगला कुछ नहीं जानता। तो ये तो आपकी समझ है ना। ईश्वर ने आपको भी और उनको भी, जिसको आप कुछ नहीं समझते हैं, अपने स्वरूप में बनाया। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं जो हमने देखा पहले, और फिर हमने ये देखा कि इस कारण क्योंकि वो दीन हो गया, नम्र हो गया, इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिए जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, हाँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में है, वे सब ईश्वर के नाम पर घुटना टेके। ये परमेश्वर का बनाया हुआ सिस्टम, इसको कोई हटा नहीं सकता। आज हम दूसरों को देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि भाई अधिकार हम ही लेके घूमते हैं, और दूसरे जो हैं वो सोचते हैं कि वो कमज़ोर है और कभी कभी वो शांति रहते हैं। अब क्या बोले, बोलने दो भाई। और इसलिए हमें जानना है कि जिसने अपने आप को नम्र दीन करा उसको परमेश्वर ने उठाया। और यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा, स्वयं अपने बारे में परमेश्वर कहता है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया कि वो ऊंचा हो गया। He was exalted so that at the name of Jesus every knee should bow, and every heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So we learn here that we who boast lot of time we boast on ourselves. I know this, I know that, I can do everything. The other fellow doesn't know the language, useless person. You say all these things, no? By telling other useless, you are useless person. You are most miserable person. That's the word of God says. वचन में लिखा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोता है वो गड्ढे में खुद गिरेगा। तो ये सारी बातों का वर्णन यहाँ पर पौलुस ने करा है, जो हमने पिछले दिनों देखा। आज हम आगे चल कर देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ हो जाए यार। आप देखेंगे, पहली बात देखेंगे, 17 पद में लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो अभी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with all of you. और यहाँ आगे लिखा था पद में, likewise you also should be glad and rejoice with me. पौलुस यहाँ पर बहुत गहरी भेद की बात करता है, इस पर हम गौर करें। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 17 पद से, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। पौलुस अपने बारे में कहता है, उसने ऐसा करा। और निश्चित रूप से हम इस बात को जानते हैं कि जब फिलिपी के अंदर कलीसिया की स्थापना हुई तो पौलुस के लहू बहे, उसको मारा गया, बेतों से मारा गया और सिरास को मारा गया।
ये आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो फिलिपी की कलीसिया थी उसकी बुनियाद जो थी वो पौलुस और सिलास का लहू था। उनको मारा गया और लिखा है कि उनको काट पे उनके पाँव को ठोक करके जेल के अंदर फेंक दिया गया। जाओ रात भर चिल्लाते रहो। ये है प्रभु के सेवकों के जीवन की कहानी। हम ये ना सोचें कि सांसारिक रूप से इनको बहुत सी बातें नहीं आती। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम घमंड करें और दूसरों पर दोष लगाएं तो हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं परमेश्वर के सामने। मित्रों, अगर हम पश्चाताप नहीं करें यहाँ पर तो एक दिन आएगा कि परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा। इफ यू डोंट रिपेंट ऑफ योर एक्यूजिंग अदर्स, कीपिंग मैलिस इन योर लाइफ, one day you will be judged severely and then there will be no one, and to avoid that you need to repent. उससे बचने के लिए आपको अपने जीवन में यहाँ पर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पौलुस ने अपने लहू बहाया और कहता है कि तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अगर अपना लहू भी मुझे बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित होऊंगा और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। पौलुस ने दुख सहा और उसके दुख के कारण फिलिप्पी के अंदर कलीसिया की स्थापना हुई। आज भी प्रभु के लोग दुख सहते हैं। हाँ, कई बार आप कह सकते भाई उनको मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया, उनका लहू नहीं बहाया, लेकिन कितना टॉर्चर किया जाता है, उनको मेंटली प्रेशराइज करा जाता है। उल्टी सीधी बातों को बोल करके, लिख करके, सोचते हैं कि सारी बातें अच्छी है। कभी लिखते ऐसे हैं जैसे किसी को पता ना लगे, कभी लिखते ऐसे जैसे पता लग जाए, सोचते हैं कि चलो भाई दंड मिलेगा। परमेश्वर क्या पक्षपाती है? जी नहीं, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती हम हैं, वो तो निष्पक्ष है। उसके लाठी में आवाज नहीं है। उसके न्याय के अंदर जब न्याय प्रकट करता है तो बताता ढिंढोरा नहीं पीटता। दुनिया में हमने कई लोगों को देखा, आपने देखा कि जिनके मन में घमंड आया अपने 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 बुद्धि और समझ का। उसमें से एक राजा ऐसा था जो 7 साल तक घास चरता रहा, जानवर बन गया। तो ये परमेश्वर है, इसको हम ना भूलें। कभी भी अपने ज्ञान समझ जो थोड़ी सी हमने प्राप्त कर, जिसके लिए माँ बाप ने कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया लिखाया, और उस पर हम आज घमंड करते हैं। क्यों घमंड करते हैं भाई? क्यों घमंड करते हैं? अगर माँ बाप जो आपके हैं उन्होंने अपने त्याग करके आपको पढ़ाया लिखाया तो इसलिए नहीं कि घमंड करें, पर इसलिए कि आप नम्र और दीन होकर के परमेश्वर की सेवा करें और समाज की सेवा करें और उसकी कलीसिया की सेवा करें। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जो हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं हाइपोक्रिटिकल नेचर। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कोई भी बात ले लीजिए, ये ठीक से नहीं है, इनको आता ही नहीं तो क्या काम करे, ये काम नहीं हो रहा, उनको आता नहीं तो क्या करे, तो तुम कर लो भैया। क्यों पैसा कमाने के चले गए थे? जवानी के 20 साल की उम्र में सेवा के लिए आ जाते ना, तो आज आप वही बात बोलते। अब उम्र हो गई 55, 60, 65, 70, अब आप कहते कि सब इनको नहीं आता, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता। पौलुस को बहुत सी बातें आती थी, वो महापंडित था, पर उसने कहा कि मैंने अपना लहू बहाना सोचा तुम्हारे लिए ताकि तुम प्रभु को जानो। अरे पौलुस यही कहता, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू ही बहाना पड़े तभी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। मेरे आनंद का जो विषय है वो तुम्हारा विश्वास है। मेरे दुख सहने से अगर तुम आनंदित होते हो, विश्वास में बढ़ते हो यीशु मसीह के, तो यही मेरा ध्येय है और जीवन का लक्ष्य ही यही है। और कलीसिया का भी होना चाहिए, आज भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई बात अच्छी होती है कलीसिया में, समाज में, तो क्रेडिट हर एक जन लेना चाहता है, और कोई गलती हो गई तो फिर वो लोग हैं जो हमारे अगुवे हैं। एक छोटी लड़की के बारे में कहा गया, बहुत पुरानी कहानी ये, पास्टर हाटर, रैल्फ हाटर जो हमारे 7 साल आश्रम में आते थे, कहा वो एक गुड़िया लेके घूमते थे, छोटी सी गुड़िया मेरी। तो उसने कहा कि ये मेरी जो है जब बहुत छोटी थी, ये कहानी है, वो अपने हाथ में डाल के उसको, तो ये फिफ्थ में पढ़ती थी, 5th क्लास में। तो एक दिन जब 5th का रिजल्ट निकला तो घर आई
और रोने लगी, रोने लगी। मम्मी ने कहा बेटा क्या, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो आंसू को पोंछते कहने लगी, मम्मी टीचर को कुछ नहीं आता है। मम्मी ने कहा क्यों? क्योंकि मुझे फेल कर दिया। यही है आज हमारी स्थिति। कहीं कोई थोड़ी सी गलती हो जाए, कहीं कोई बात हो जाए, तो हम बिल्कुल अपना हाथ उठाते हैं कि भाई इन्होंने करा। और अगर अच्छा काम हो रहा, हमने करा। और बड़े जो समस्याएं हैं उनके लिए समाधान के लिए आएंगे अगुओं के पास, साहब आपकी मदद के बिना तो ये हो नहीं सकता। बड़े बड़े काम जिनको कर नहीं सकते, इतना घमंड उनको अपने ज्ञान का है, इतनी समझ है उनको, लेकिन जब कोई बड़े मुद्दे आते हैं तो वापस लीडर्स के पास आते हैं कि साहब आप चलिए, आपके बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर पौलुस जो कहता है, बिल्कुल सही बात पौलुस वो कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी मुझे बहाना पड़े। वो चाहता था कि उनका जीवन प्रभु का जो उसकी जो सेवा थी पौलुस की, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, तुम्हारी बलिदान और सेवा को प्रभु ग्रहण कर सके। तो ये पहली बात है। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है, संत पौलुस कहते हैं मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। अब यहाँ पर संत पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस के आत्मिक जीवन के उस गुण की चर्चा करते हैं, क्वालिटी की चर्चा करते हैं कि वो उन लोगों के लिए सुनता है, उनकी मदद करता है जिनकी आवश्यकता है। और तीमुथियुस के बारे में मैंने आपको बताया था, आप इस बात को जानते हैं कि तीमुथियुस वो जवान था जो लुस्त्रा का रहने वाला था, जहाँ पहली मिशनरी यात्रा के दौरान संत पौलुस को पथरवा के आ गया। तो उसने पौलुस के दुखों को देखा था, पौलुस की कठिनाइयों को महसूस करा था, और अब पौलुस उसके बारे में गवाही देता कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उसका स्वभाव नम्र है, शुद्ध मन का है वो, और दूसरों की चिंता करता है। इसके संदर्भ में कुछ मैं पद यहाँ पर और पढ़ना चाहूँगा जहाँ संत पौलुस ने उसके बारे में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 9 पद से अगर हम पढ़ें उसके 13 पद तक, तो हम इस बात को देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी ऑल्सो सी लिटिल बिट अबाउट दिस सन इन फेथ ऑफ सेंट पॉल टिमोथी, व्हाट ही राइट्स हियर। वो कहते हैं यहाँ पर 9 पद में कहते हैं, दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 9 पद से, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रिसमस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। तुकिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैंने त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आएगा तो उसे और पुस्तकें विशेष करके जम पत्रों को लेते आना। आगे लिखते हैं पौलुस, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। अब यहाँ पर संत पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को अपने पास बुला रहा है, और यहाँ उसके बारे में वो कहता है कि तीमुथियुस जो है उसका स्वभाव जो है बहुत ही नम्र है, क्योंकि वो मन में शुद्ध है और वो विश्वासियों की चिंता करता है। What are the qualities he mentioned about his spiritual son Timothy? He says, verse 20, for I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. Now this is one very important thing, my friends, in the mission field or in the church, that a person of Jesus Christ, a disciple of Jesus Christ, should be mindful, should be willing to help others who are in need, not to criticize them,
not to bring charges against them, but to help them so they also may realize their fault and they may know that Jesus wants them to live in accordance to his will. And this is what St. Paul talks about his spiritual son Timothy. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him, like Timothy, who will be genuinely concerned for your welfare. Now this is very important in the mission I told you. ये हमारे मिशनरी कार्य के लिए बहुत जरूरी है, चर्च के अंदर भी बाहर भी, कि हम जो प्रभु के सेवक अपने आप को जताते हैं या कहते हैं या सचमुच में हम हैं, हमारे मन के अंदर प्रभु के उन लोगों के लिए जो कलीसिया के अंदर आए हैं या जिनको प्रभु अपने कलीसिया में ले आया है, उनके लिए हम शुद्ध मन से उनकी चिंता करें, उनकी मदद करें और उनकी सहायता के लिए हर प्रकार से प्रयास करें। और तीमुथियुस उनमें से एक था, जिसके लिए पौलुस यहाँ पर कहता है। फिर हम देखते तीसरी बात को देखते हैं, यहाँ पर 21 पद में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं और कि यीशु मसीह की, वो कहते हैं कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं और कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सोचे। अब यहाँ पर जो पद मैंने आपके सामने पढ़ा 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय में, वहाँ संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पौलुस को छोड़ दिया था। 9 पद में लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 9 पद से, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। अब देमास भी एक प्रकार से प्रभु का एक विश्वासी था जो प्रभु के पास लाया गया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली संत पौलुस के द्वारा। लेकिन अब वो कहते हैं, पौलुस कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि उसने संसार को प्यार करके मुझे छोड़ दिया, संसारिक के बातों पर उसका ध्यान चला गया। यहाँ लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो देमास का नाम एक। इसके बाद वो कहते हैं, और वो थिस्सलुनीके को चला गया है। फिर वो कहते हैं क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। अभी अपने कामों में जो पौलुस के साथ हुआ करते थे, उसके काम में उनकी मदद करते थे, क्षणिक बातों के कारण पौलुस को छोड़ करके उन जगहों पर चले गए जहां उनको अच्छा लगता है, जिसके लिए वो सोचते हैं कि हमें वहां जाकर रहना अच्छा है। फिर वो कहते हैं, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। अब ये मरकुस, यूहन्ना मरकुस वही है जो पहली मिशनरी यात्रा के बाद दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो उसको छोड़ करके, पौलुस को छोड़ करके वो दूसरे और जगह चले गए और पौलुस के साथ वो ना रहा। लेकिन अब पौलुस कहता है कि उसको मेरे पास ले आ। ऐसा लगता है कि अब जब पौलुस ये पत्र लिख रहा है फिलिपियों को, तो उसको उसकी ज़रूरत है। किसके? मरकुस की। वो पहले बरनबास के साथ साइप्रस को चला गया था, लेकिन अब पौलुस कहता है कि उसको मेरे पास ले आ, क्योंकि वो बड़े काम का है। फिर वो कहते हैं, तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैंने त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चम पत्रों को लेते आना। अब एक और व्यक्ति का नाम यहाँ पर है जिसने दुनिया को प्रिय जाना, वो है, लिखता है पौलुस 14 पद में 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसके कामों के अनुसार उससे बदला देगा। और तू भी उससे सावधान रहना। कौन? तीमुथियुस। उससे सावधान रहना, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि उसका लेखा उनको देना ना पड़े। तो इन सब बातों का वर्णन, इन सब लोगों का वर्णन पौलुस करते हैं और फिलिपी के पत्र में फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को, और वो खास कहते हैं तीमुथियुस के लिए कि तीमुथियुस इन बातों में इन लोगों से सावधान रहे। मित्रों, यहाँ पर भी यह लिखा है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो हमारा जो लक्ष्य है यीशु मसीह में आने के बाद क्या है कि हम यीशु मसीह की आज्ञा माने और उसके जीवन के तमाम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करें। यीशु मसीह का लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइव्स ऑल्सो। एंड व्हाट इज दैट? टू सीक ye first the kingdom of God and all his righteousness,
हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए मित्रों, वो होना चाहिए कि हम उसके राज्य की खोज करें और परमेश्वर के राज्य की तमाम बातें उनकी खोज करें। अतः दुनिया की हर एक बातें जो हमारी आवश्यकता की है प्रभु हमें देगा। ये मेरा अनुभव भी है और आप में से बहुतों का अनुभव है। जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ आपकी मदद और आपकी सहायता हमेशा करता है। अब यहाँ पर हम आते हैं चौथे बात में, 22 पद में लिखा, फिलिप्पी 2:22 पद, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। किसने परिश्रम किया? तीमुथियुस ने किया। कभी कभी हमारा जीवन, sometime our lives that we live in this world is tested by our work and faith, or faith and work. If our work is dependent on the faith that we have in Jesus Christ, our works will glorify God. But if our works are not motivated by our faith or by faithlessness, then it will create chaos and things will be miserable for us. So we need to be very, very careful. And Paul talks about here the life of Timothy, how sincere he was, and he always helped him. And he says here, but you know Timothy's proven you worth, how as a son worth a father for his has served with me in the gospel. And then he said, I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with him. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. तो वो उनको बताता कि मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊँगा और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप ही शीघ्र आऊँगा। वो फिलिप्पी जाने की बात करता था कि लोगों को मोटिवेट करे, पर वो कहता कि जब तक मैं ना आऊँ मैं तीमुथियुस को भेजता हूँ और तुम उससे सुनना, क्योंकि वो प्रभु का सचमुच में विश्वास योग्य सेवक है। पांचवी बात, 25 पद यहाँ लिखा है, पर मैंने इपफ्रोदितुस को, मेरा भाई और सहकर्मी है, संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। अब यहाँ पर पौलुस बात करता है उसके एक और साथी इपफ्रोदितुस की, जो प्रभु का सेवक था और विश्वास में पौलुस का भाई बन गया। पौलुस कहता है कि मैं उसको भेजूंगा क्योंकि वो तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता करे। अब मित्रों, ऐसा ही होता है जब प्रभु की सेवा की बात करते हैं तो प्रभु अपनी सेवा के अंदर बहुतायत से इस्तेमाल करता है। हमारी जो कमियां घटियां हैं या जीवन की जो बातें हैं जो सचमुच में दुनिया के कारण या दुनिया की बातों के कारण उससे प्रभु की महिमा शायद ना होती है, प्रभु उन्हें अपनी महिमा के योग्य बना देता है ताकि हम उसकी सेवा, उसकी आराधना, उसकी महिमा उसके वचन के अनुसार कर सकें। तो ये हमने पांचवी बातें देखी। और वो कहता है कि वो जो व्यक्ति है इपफ्रोदितुस, वो कहता है क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है, इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। तो पौलुस कहता है कि तुमने जब वो बीमार था तुमने उसकी मदद करी। किन लोगों ने? फिलिप्पी के लोगों ने। और ये जो सेवकाई है मित्रों, प्रभु की जो सेवा जिसमें हम पाए जाते हैं, यहाँ पर हम यही बात देखते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद और सहायता करने की आवश्यकता है। छठवीं बात, निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी पर ही नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक ना। वो कहता है कि जब इपफ्रोदितुस बीमार पड़ा तुमने उसकी सेवा करी और न कल उसकी करी पर मेरी भी तुमने करी, क्योंकि मैं भी, मेरी इच्छा भी, मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई। वो कहता मेरी स्थिति भी ऐसी हो रही थी, ना केवल उसकी ही पर मुझ पर भी मुझे शोक पर शोक ना हो। तुम्हारे आने से, तुम्हारे मुझे सांत्वना देने से मेरा जीवन जो है प्रभु में आनंदित होता रहा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। छठवीं बात, सातवीं बात यहाँ पर वो कहता है 29 और 30 पद में, सातवीं बात, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसा का आदर करना क्या करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करा। ये कौन व्यक्ति है? निश्चित रूप से इपफ्रोदितुस।
जो प्रभु के वचन की सेवा के लिए जो वास्तव में अपने आप को जिसने दिया था, अब पौलुस उसको बहुत ही आनंद के साथ रिकमेंड कर रहा है कि जब वो तुम्हारे पास आना तुम उसको स्वीकार करना, क्योंकि उसने अपने आप को क्या करने के लिए, वो कहता है वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का उसने जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, मरने पर था, क्योंकि उसने प्रभु की सेवा के लिए बहुत से ऐसे काम करे, उन जगहों पर गया जहाँ पर कठिनाई आती, परेशानी आती। अब पौलुस भी इस बात को जानता था। पौलुस ने जब मिशनरी यात्रा की शुरुआत करी तो उन जगहों में गया, कठिनाइयों को सहते हुए, दुखों को सहते हुए, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हुई। बरनबास को तकलीफ हुई, बाद में तीमुथियुस को तकलीफ हुई, तीतुस को तकलीफ हुई, और उन सबको तकलीफ हुई जो पौलुस के साथ सेवा में जाते थे, कार्य करते थे। और ये सारी सेवकाएं जो है, ये सारी बातें जो है, इसलिए ग्रहण योग्य है क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो है सुसमाचार का प्रचार, किसका? यीशु मसीह के। और आज भी मित्रों, अगर हम प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सब कुछ हम सह रहे हैं प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए। ये जो एपिसल मेथोडिस्ट चर्च है मित्रों, ये धन्य कलीसिया, इस कलीसिया के सामने एक लक्ष्य हमारे सामने, और लक्ष्य क्या है कि हम हर प्रकार से मिशन के लिए सोचें, प्रार्थना करें, दान दें। जो मिशनरीज हैं, सुसमाचार के प्रचारक हैं, हमारे पासबान लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के सुसमाचार के काम को आगे बढ़ा सकें। मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे। मेरी आशा कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु जी, हमने आपके वचन को देखा, इस पर हमने गौर करा। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमें ऐसा जीवन दे जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु जी अंकुरित हो जाए, इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों को सूचनाएं हैं, पिछले 2 दिन तक ये बाइबल स्टडी नहीं आ सकी, उसकी वजह बहुत कुछ कार्य में हम व्यस्त रहे, और इसलिए, लेकिन अब ये रेगुलरली हम देंगे, कोशिश करेंगे। तो आप सुनते रहें। समय है शाम को 7:30 बजे का। साथ ही साथ अभी 27 तारीख से हमारी आराधना शुरू हो जाएंगी, और जो हमारे वो जवान हैं जिनका कंफर्मेशन होना है, उनकी क्लासेस भी लगेंगी। मैं इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन उसकी क्लासेस लेंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर शरण सावंत। समय आपको बता दिया जाएगा, आप उन क्लासेस में भाग लें, आप प्रभु के वचन को सीखें। ये मेरी आपसे अनुरोध है, हिदायत है। हर सेकंड सैटरडे को हमारे WCS के बहनों की मीटिंग होती है जूम के द्वारा, और वो समय है शाम को 4 बजे। आप इसमें भाग लें और ईश्वर के आशीष प्राप्त कर सकें। हर रविवार को शाम को 4:30 बजे से हमारा संडे स्कूल होता है। हम चाहते हैं कि आप उसमें भाग लें, आप प्रभु के वचन को सीखें, और बच्चे जो संडे स्कूल के हैं आप उनको मोटिवेट करें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो यूथ हैं, वो MYF की मीटिंग हमारे हर संडे को होती है 2 बजे से लेकर के। मैं चाहूँगा भाई उत्कर्ष से आप बात करें और आप सब इस मीटिंग में भाग लें। हर शाम को 7:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होती है, और 2nd और 4th संडे को भी बाइबल स्टडी संडे को होती है, और हमारा विषय इन दिनों में है दानियल की पुस्तक। तो मैं चाहूँगा आप इसमें भी भाग लें। मित्रों, अगर आपके पास कोई परेशानी है, दुख है, कठिनाई है, और आप चाहते हैं कि आपके पासबान आपके लिए प्रार्थना करें, तो हर रोज़ हम ऑफिस में बैठते हैं। हमारा समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। मेहरबानी से आप आएँ ताकि हम आपसे बात करें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें। साथ ही साथ जो चर्च फंड आप देते हैं हर महीना, पिछले आप 6 महीने तक चर्च नहीं आ सकें, अगर आपने नेट ट्रांसफ़र नहीं करा तो मेहरबानी से उसको जमा करें चर्च में आके। यही समय है सोमवार से शनिवार तक, सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, और चर्च से आप रसीद ले लें। और जो संडे ऑफरिंग आप जमा कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, अप्रैल से, उसको भी लाइए। और मैं सोचता हूँ कि आपने रखा अपने पास
उसको लाइए और उसको भी जमा कर दीजिए। इकट्ठे जमा कर सकते हैं कई महीनों का, और उसकी रसीद आप ले लें, आपको रसीद मिल जाएगी। तो मेहरबानी से इन बातों को याद रखिएगा। प्रभु आपको संभाले, आपकी सहायता करें। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे अपने देश के लिए, अपने चर्च के लिए, हमारे अगुओं के लिए, ताकि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे और ये पैंडमिक समाप्त हो जाए, ये संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि जो कुछ हमने सीखा हम उसमें आगे बढ़ सकें। हमें सुनने वाले कान दे प्रभु, और ग्रहण करने वाले हृदय दें। हमारे कलीसिया पर, एक एक परिवार पर, एक एक बुजुर्ग पर, एक एक माँ बाप पर, एक एक जवान पर, एक एक बच्चे पर आपके आशीष हो। साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के तमाम कलीसिया को, तमाम पासवानों को, हमारे बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरेंद्र कुमार, हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर मिस्टर अनिल नथानियल, हम चाहते प्रभु कि इनमें से हर एक को आशीष दें, इनके परिवार को आशीष दें प्रभु जी, और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते कि हमारी प्रार्थना आपने सुनी है। इस कलीसिया के एक परिवार पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कुसुरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की इफाकत और शराकत अपने सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु आपकी सहायता कर, आप आशीष दे और आपके जीवन को अपने हाथों से संभाले, आपकी रक्षा करे। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबको जय मसीह की।